Assalamu alaikum, my dear students and my dear fellows. Today our discussion topic is about active and passive voice of past indefinite tense. But before discussion, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Stay tuned with me. Let's start our discussion. Okay, my dear fellows and students. Today we will discuss about past indefinite tense passive voice. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले मैं आपको बता दूं. इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब and in simple sentences, but in negative and interrogative sentences we use first form of verb because we are using did here, which is the second form of do did done. Okay, so that's why we are using here first form of verb in negative and interrogative sentences. First of all, you should know about what is active voice and what is passive voice. Active voice sentences are those in which subject is in active form, and passive voice sentences are those in which subject we will find in passive form. There are 12 tenses, but we can do only 8 tenses of passive voice. Okay. Now we should know about what are those tenses? Which are those tenses that we can do the passive voice? We already know that there are 12 tenses. First one is present indefinite, present continuous, present perfect tense, and present perfect continuous tense. These are 4 tenses: past indefinite, past continuous, past perfect tense, and past perfect continuous tense. These are also 4 tenses. 4 and 4. Now these are 8 tenses: future indefinite, future continuous, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Now these are 4 tenses. 8 and 4, total 12 tenses are there. We can do passive voice only 8 tenses. My dear fellows and students, always remember that we can't do passive voice of perfect continuous tense. That means we can't do passive voice of present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and future perfect continuous tense. These 3 tenses we can't do passive voice. The other one is future continuous tense, in which we are using will be or shall be with first form of verb and ing. He will be going to school. They will be eating food. These are the sentences of future continuous tense, and we can't do passive voice of this tense as well. The second thing I want to tell you about, we can do passive voice only of transitive verbs. Transitive sentences, you can say that. First one is transitive. You should know about what is transitive and what is intransitive sentences. Transitive sentences are those in which we need object to give the sense of that sentence. Just like I like, what I like mangoes, I like pizza, etc. But some sentences are there we don't need any
object to make the sense of that sentence, just like, and these sentences are called intransitive sentences, just like he smiles, वो मुस्कुराता है। अब इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं बनती, हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस गिव्स द अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस, जो हमें कंप्लीट सेंस देता है। अब सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर भी हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि शी स्माइल्स, ही वॉक्स, शी रन्स, द बेबी क्राइज। अब इन सेंटेंसेस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है और ये खुद ही अपनी सेंस बना रहे हैं, ठीक है। अब जब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो हम इनके पैसिवाइज नहीं बना सकते, ठीक है। यानी कि अब हमने किनके पैसिवाइज बनाने हैं? पहले तो मैंने आपको बताया कि 8 टेंसेस के हम पैसिवाइज बना सकते हैं। टोटल 12 टेंसेस हैं, जिनमें से हम 8 टेंसेस के पैसिवाइज बना सकते हैं। सेकंड थिंग मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव सेंटेंसेस जो होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं, जो है उनके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम इंट्रांजिटिव के नहीं बना सकते, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स या सेंटेंसेस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती सेंटेंस की सेंस बनाने में, ठीक है। अब आगे देखें, देयर आर बेसिक 5 रूल्स टू डू एक्टिवाइज सेंटेंसेस इनटू पैसिवाइज। In all tenses, we are using these 5 rules except imperative sentences. Imperative sentence में हम ये 5 rules use नहीं करेंगे, only 4 use करेंगे। You should eliminate by का इस्तेमाल नहीं होगा, बाकी सारा कुछ almost ऐसा ही है। First rule is subject into object. Second rule is object into subject. Third rule is use of third form of verb. In all passive sentences, we use third form of verb. Use of helping verb and use of by. Okay, students. In past indefinite tense, we use helping verb was or were. या was इस्तेमाल करेंगे या were इस्तेमाल करेंगे. But if we we already know, we use second form of verb in past indefinite tense. हम past indefinite tense में second form of verb का इस्तेमाल करते हैं simple sentences में, but in negative and interrogative sentences we use first form of verb with did. हम did के साथ first form of verb क्यों लगाते हैं? क्योंकि did is the second form of verb of do did. So we are already using did there, so no need to use second form of verb again. First of all, one sentence, a sentence normally of transitive have 3 parts. First one is subject, second one is verb and the other one is ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस के नॉर्मली 3 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स भी होती हैं लेकिन वो इंट्रांजिटिव में होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पैसिवाइज की बात कर रहे हैं, तो हम ट्रांजिटिव सेंटेंसेस या ट्रांजिटिव को ही डिस्कस कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज Who is performing action, जो एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि अली काम करता है, काम कौन कर रहा है? अली कर रहा है। वो स्कूल जाता है, स्कूल कौन जा रहा है? वो जा रहा है। तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और उर्दू में फाइल कहते हैं। वर्ब कहते हैं एक्शन को, जैसे कि अली खाना खाता है। अब इसमें खाने का काम हो रहा है, ये वर्ब है। वो क्रिकेट खेलते हैं, खेलने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम हो रहा है, ऑन विच एक्शन परफॉर्म्स। जैसे कि
मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किस पर काम हो रहा है, क्रिकेट पर काम हो रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आगे देखें, एक और सेंटेंस, वो खाना खाते हैं। अब खाने पे काम हो रहा है, खाना जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको इनके बारे में भी कंप्लीट सेंस होनी चाहिए कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब was और were। दो हेल्पिंग वर्ब्स हम यहाँ यूज कर रहे हैं, यानी कि एक ही होगा, was किनके साथ होगा या were किनके साथ होगा। was we will use with I, he, she, it प्लस सिंगुलर नाउन। आपने इनके साथ was का इस्तेमाल करना है। were जो है we, they, you प्लस प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। प्लूरल नाउन्स कौन से नाउन्स होते हैं, ऐसे नाउन्स जो एक से ज्यादा हो, जैसे असलम और अकरम, हिना और आयशा। असलम, हिना और आयशा, यानी कि दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। उनके साथ हमने वर्ड का इस्तेमाल करना है। Please subscribe this channel. If you haven't subscribed this channel, like the video, share the video with other fellows as well. प्लीज़ लाइक भी ज़रूर किया करें और कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है और आपका कैसा फीडबैक आ रहा है, ठीक है। Now students, you should know about this table also. Subjective and objective. I will convert into me, you into you, he into him, she into her, it into it, we into us, they into them, who into whom। अब मैं आपको इसके टेबल के बारे में थोड़ी सी तफसील बता दूं स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज। जब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है तो हमने उसकी सब्जेक्टिव कंडीशन को नहीं लिखना, हमने उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन को लिखना है। तो आप सब, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न दिस टेबल, ठीक है। आपने बहुत अच्छे तरीके से क्रैमिंग कर लेनी है, इसकी चंकिंग कर लेनी है, ठीक है। जब आई यूज होगा तो हम मी का इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे। अगर यू का इस्तेमाल होगा तब हम यू का ही करेंगे। फिर अगर ही का इस्तेमाल होता है तो हम हिम का इस्तेमाल करेंगे। शी का होगा तो हर, इट का होगा तो इट में, वी का होगा तो अस में, दे का होगा तो देम में, हु का होगा तो हुम में। ये टेबल आपने लर्न अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि ये टेबल आपके तमाम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा। इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव टेबल एज वेल।
लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. ही टुक टी. अब ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि ये परफॉर्म एक्शन कर रहा है. टुक जो है वर्ब है, टी जो है वो ऑब्जेक्ट है. ही पर काम हो रहा है यानी कि ही परफॉर्म कर रहा है एक्शन, तो ये सब्जेक्ट है. एक्शन कौन सा हो रहा है? टुक का यानी कि पीने का. ठीक है, वर्ब का है. और किस पर काम हो रहा है? टी पर हो रहा है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब देखें, फर्स्ट रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं. सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. ही को लिया हमने, हिम की तरफ आ गए. ठीक है, हिम में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि अब हमने उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन को यहाँ पर या ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ पर पुट करना है. ठीक है, फर्स्ट रूल हो गया. और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर ले आए तो वहाँ पे हमने टी लिख दिया. अब टुक की थर्ड फॉर्म टेकन है. टेक, टुक, टेकन, तो हमने टेकन लगा दिया. अब हिम से पहले हमने बाय का इस्तेमाल कर दिया. ठीक है, अब जो टी जो है सिंगुलर नाउन है. ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ आपने वॉज लगाना है. आप यू ऑलरेडी नो इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस वी यूज हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, या वॉज इस्तेमाल होगा या वर इस्तेमाल होगा. हमने सारे रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए. यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ बाय, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सारा हमने यूज कर लिया और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ. नाउ इट इज कॉल्ड, इट इज पैसिव वॉइस सेंटेंस. ऊपर फुल स्टॉप लिखा हुआ था, हमने ऊपर से देखकर नीचे फुल स्टॉप लगा दिया क्योंकि इट इज द सिंपल सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं. इसी सेंटेंस का स्टूडेंट्स मैंने आई हैव टेकन वन सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, देन आई कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव, interrogative, negative plus interrogative, and with WH words as well. Second sentence है he did not take tea. अब did we are already using here did, so to की second form थी did, तो फिर हमने इसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी. अब यहाँ पे भी सेम केस है. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, टी इधर आ गया, बाय हिम उस साइड पे चला गया. टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लिख दी और टी के साथ हमने वो लिख दिया. ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फेलोज, इन ऑल नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज नोट राइट आफ्टर द मेन हेल्पिंग वर्ब. हम मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इस्तेमाल करते हैं जितने भी सेंटेंसेस हैं या जितने भी टेंसेस हैं. आइदर द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. जितने भी टेंसेस हैं, there are 12 tenses, we use not right after the main helping verb. आपने main helping verb के बाद या helping verb के बाद नोट का इस्तेमाल करना होता है. अब यहाँ पे was जो था वो main helping verb था, that's why we are using not right after the was here. Third sentence, did he take tea? अब देखें, in all interrogative sentences हेल्पिंग वर्ब प्लेस फर्स्ट इन द सेंटेंस. जो जितने भी सवालिया जुमले हैं, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आता है. ठीक है, आइदर द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन सब सेंटेंसेस में जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगा वो सबसे पहले आएगा. फिर राइट आफ्टर द मेन हेल्पिंग वर्ब वी यूज सब्जेक्ट, देन वर्ब, then object, and right after the object we will put their question mark.
जिसको कहते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं एंड साइन ऑफ इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। अब देखें, डिड ही टेक टी, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डिड ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जो कि डू की सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे भी देखें स्टूडेंट्स, टी को स्टार्ट में, फिर बाय हिम को एंड पे, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, वो लगा दी हमने। फिर उसके बाद देखें, ये हमने रूल्स अप्लाई कर दिए। अब हमारा मसला चला कि हमने टी जो था वो सिंगुलर नाउन था, उसके साथ हमने वॉज लगाना था। ऊपर हमने देखा कि ये सवालिया जुमला है, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फिर हमने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले हमने वॉज का इस्तेमाल कर दिया। फिर हमने देखा सेंटेंस के साथ साइन ऑफ इंट्रोगेटिव लगा हुआ है, तो हमने नीचे भी हिम के बाद साइन ऑफ इंट्रोगेटिव लगा दिया। ठीक है, जिसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। हमने वहां पर क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। यानी कि स्टूडेंट्स आप ये समझ लें, इस टेंस के ज़रिए आपको बाकी टेंसेस की भी समझ आ रही होगी कि नेगेटिव में क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी साथ बेसिक्स भी बता रही हूँ, ताकि आपके जो मिसिंग पॉइंट्स हैं या आप भूल चुके हैं वो सारे जो हैं आपको याद आ जाए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, WH क्वेश्चंस के साथ आ गया, अब WH वर्ड्स के साथ आ गया। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर WH वर्ड्स। ये WH वर्ड्स होते क्या हैं? विच, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हाई, दीज आर कॉल्ड WH वर्ड्स। इनको WH वर्ड्स कहा जाता है। यानी कि ये सेंटेंस में पूछते हैं क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, ऐसे। ठीक है, और जब ये आते हैं तो इनकी इम्पोर्टेंस जो होती है हेल्पिंग वर्ब से ज़्यादा होती है, मेन हेल्पिंग वर्ब से भी ज़्यादा होती है। तो ये पोजीशन अपनी फर्स्ट लेते हैं। यानी कि जब भी ये सेंटेंस में आएंगे तो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो ये सबसे पहले इनकी ट्रांसलेशन की जाएगी। क्यों आएगा तो वाई लिखेंगे, कि कहाँ आएगा तो वेयर लिखेंगे, कैसे आएगा तो हम हाउ लिखेंगे। फिर राइट आफ्टर WH वर्ड्स वी विल यूज हेल्पिंग वर्ड, जैसे व्हाट आर यू डूइंग। अब देखें, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब वेयर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। वेयर वर यू येस्टरडे, तुम कल कहाँ थे। ठीक है, अब वेयर के बाद यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल हो गया। इसी तरह हमने WH वर्ड्स वाले सेंटेंसेस भी इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो तो ये आप माइंड में रिकॉल कर सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, वेयर वर यू येस्टरडे, हाउ आर यू टुडे, ऐसे सेंटेंसेस को, ताकि आपको याद आ सके कि आपने सेंटेंस को कैसे पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है, या फिर आप किस तरीके से सेंटेंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, वाई जो है हमने आंखें बंद करके वैसे ही लिख दिया। ठीक है, लिख दिया वैसे ही। फिफ्थ सेंटेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जब हमने वाई लिख दिया, उसके बाद सेम रूल अप्लाई किया, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ वाई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का मैंने आपको बता दिया था कि इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव देन इट विल प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट से पहले आएगा, लेकिन अगर WH वर्ड्स आ रही हैं तो सबसे पहले WH वर्ड्स को ट्रांसलेशन करके राइट आफ्टर आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमने सेंटेंस का क्या ऐसे किया, वॉय वॉज टी टेकन बाय हिम। ऊपर क्वेश्चन मार्क था तो हमने नीचे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि है नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। आई थिंक सो हमने फोर्थ सेंटेंस को स्किप कर दिया है। आप ज़रा ये फोर्थ सेंटेंस की तरफ भी आए, जो नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, WH वर्ड्स वाला नहीं है। डिड ही नॉट टेक टी, इट इज़ फोर्थ सेंटेंस।
अब इसमें भी सिंपल ऐसे ही करेंगे, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ बाय, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, डिड से पहले टी से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया वॉज, और राइट आफ्टर द सब्जेक्ट हमने यूज किया नॉट। अब इसका भी सीक्वेंस इन ऑल 12 टेंसेज में सेम है। अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा स्टूडेंट्स, तो आपने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, और राइट आफ्टर द सब्जेक्ट हमने नोट लगा देना है। 12 टेंसेस में यही रूल्स अप्लाई होते हैं। इवन के पैसिव वॉइस 8 टेंसेस के बनते हैं, उन 8 टेंसेस में भी यही रूल्स अप्लाई होंगे कि राइट आफ्टर द सब्जेक्ट आपने नोट का इस्तेमाल करना है। I hope so you have understood all the points which I have discussed in this video. Now come to the 6 points, 6 sentence की तरफ चलते हैं. Say first 5 sentences I have discussed with you. 6th sentence, why did he not take tea? अब ये देखें, WH words वाला भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, पहले तो आपने ये तो अंडरस्टूड है आपके लिए कि आपने WH वर्ड्स वाला जो है उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है, या उसी वर्ड्स को वैसे ही लिख देना होता है। हमने वाई को वैसे ही लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म लगाई, यूज ऑफ वाई का भी इस्तेमाल कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि जब आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो WH वर्ड्स के फौरन बाद लगाना है, हमने वो भी लगा दिया। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इन ऑल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का मतलब पता क्या है, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, वो खाना किधर नहीं खाते हैं, यानी कि ऐसे जुमले जिसमें सवालिया भी हो और नेगेटिव, सवालिया भी और मनफी भी जुमले हो, यानी कि नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी हो, ठीक है। उनमें आपने क्या करना है, पहले WH वर्ड्स का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नोट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने कर दिया, पूरा सेंटेंस सेम है, ऊपर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था, हमने नीचे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर ठीक है, अब आ जाए 7th सेंटेंस पर, दैट वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस आई हैव सिलेक्टेड फॉर यू। आई एट मैंगोज। अब आई इसमें क्या है, परफॉर्म कर एक्शन, दैट वन इज सब्जेक्ट, और एक्शन कौन सा हो रहा है, खाने का, एट वर्ब, दैट वन इज वर्ब, एंड ऑन विच एक्शन परफॉर्म, मैंगोज पर काम हो रहा है क्योंकि मैंगोज खाए जा रहे हैं, तो ये दैट वन इज ऑब्जेक्ट, जिससे उर्दू में मफूल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, हमने बाय मी लिख दिया, आई कन्वर्ट इनटू मी, ओके, उससे पहले हमने बाय लगा दी, ऊपर फुल स्टॉप था, हमने नीचे भी फुल स्टॉप लगा दिया। वी आर डिस्कसिंग हेयर 7th सेंटेंस लगा दिया। उसके बाद मी को हमने हम मैंगोज को स्टार्ट में ले गए, मैंगोज लिख दिया। एट जो है वो सेकंड फॉर्म है ईट की, थर्ड फॉर्म इसकी ईटन है, ईटन भी लिख दिया। अब देखें, अब मैंगोज, अब ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है, अब ये सब्जेक्ट जो है डिसाइड करेगा कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना है, ठीक है। अगर तो ये सिंगल फॉर्म में आता तो हमने वॉज लगा देना था। अब ये सिंगुलर नाउन नहीं है, ये प्लूरल नाउन है, मैंगोज ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर वर। आपने ऊपर से सेंटेंस को नहीं देखना है, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि ऊपर देखते हैं जी वाही था तो नीचे बहुत लगा दिया, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे होते। तो अब तो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के से हमने सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए वो तो प्लूरल फॉर्म में है, तो उनके साथ सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब कैसे लग सकता है, ठीक है। अब मैंगोज, ये मैंगोज डिसाइड करेंगे इनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो यहाँ पर मैंगोज ज़्यादा थे तो हमने वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट ईट मैंगोज, ठीक है, मैंने आम नहीं खाए, तो
क्या होगा, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ वाई, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, राइट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी विल पुट नोट देयर। हमने वैसे ही किया, मैंगोज को शुरू में ले आए, आई को कन्वर्ट किया बाय मी में, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, अब मैंगोज के साथ वर्ड लिखा हुआ है, लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, और राइट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया नोट। अब नाइन्थ सेंटेंस की तरफ आते हैं, दैट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड आई ईट मैंगोज, क्या मैंने आम खाए। अब यहाँ पे देखें, मैंगो स्टार्ट में, बाय मी एंड पे, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन लिख दी। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम आया, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो हमने वर्ड जो है बिल्कुल स्टार्ट में लिख दिया, बिकॉज इन ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज हेल्पिंग वर्ब इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। ऊपर भी देख लें आप, 9th सेंटेंस में डिड जो है शुरू में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब भी आएगा ना, लेकिन वो कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वेयर डिड आई ईट मैंगोज। वेयर शुरू में लिखे, ऊपर लिखा हुआ था हमने नीचे लिख दिया। आई को कन्वर्ट किया बाय मी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, मैंगोज को स्टार्ट में लेकर आ गए। अब WH वर्ड्स था, WH वर्ड्स के फौरन बाद हमने क्या लगाया, मेन हेल्पिंग वर्ब लगाया। अब मैंगो जो थे ज़्यादा थे तो हमने वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, दैट वन इज 11 सेंटेंस। डिड आई नॉट ईट मैंगोज, क्या मैंने आम नहीं खाए। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, वर्ड मैंगोज लिख दिया, बाय मी आ गया, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन आ गई। अब मैंने आपको बताया था अगर इफ द सेंटेंस इज इन द बोथ फॉर्म नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, देन you will start the sentence from helping verb, then you will use subject, and right after the subject you will use here note। आपने नोट का इस्तेमाल किया। अब हमने वर्ड स्टार्ट में लगा दिया, मैंगोज लिख दिए, फिर मैंगोज यानी कि सब्जेक्ट था, राइट आफ्टर द सब्जेक्ट हमने नोट का इस्तेमाल कर लिया। नाउ कम टू द 12th सेंटेंस, वाई डिड आई नॉट ईट मैंगोज। WH वर्ड्स वाला फिर एक क्वेश्चन, एक और सेंटेंस आ गया। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर वाई था तो हमने नीचे भी वाई लिख दिया। बाकी चेंजिंग हमने वैसे ही कर दी स्टूडेंट, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ वाई, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने कैसे लगाया, WH वर्ड्स के फौरन बाद। कौन सा सेंटेंस याद रख के करना है, हाउ आर यू, वेयर वर यू, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, इन सेंटेंस को। फिर हमने WH वर्ड्स के फौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ड लगा दिए, क्योंकि मैंगोज ज़्यादा थे। मैंगोज के फौरन बाद यानी कि अगर सेंटेंस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव है तो हमने राइट आफ्टर द सब्जेक्ट नोट लगा दिया, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था तो हमने एंड पे सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। Please students and my dear fellows, don't forget to like, comment, share and subscribe this channel। आपने कमेंट लाजमी करना है, वीडियो को भी लाजमी आप लोग लाइक करें प्लीज़, ये मेरी इट इज़ रिक्वेस्ट। और ये जो वीडियोस हैं उन स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस करें जो ट्यूटर का अरेंज नहीं कर सकते हैं या जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं अपने टीचर्स के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जिनको टेंसेस या ग्रामर का सीखने का शौक़ है, उनके साथ लिंक को ज़रूर शेयर किया करें। उन्हें भी कहा करें सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज, जैसे ही न्यू वीडियो आएगी आपको
उसका लिंक शो या वो वीडियो शो होना शुरू हो जाएगी यूट्यूब चैनल पर। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे और लाइक भी करेंगे, अच्छे से कमेंट भी करेंगे और वीडियोस को शेयर भी करेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे ट्यून विद मी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।